دور سے میری اکیلے کی آواز آپ لوگوں سے بہت اونچی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، فیضان رضا جاری رہے گا. علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی گالا پڑتا، بڑی گالا ہے. غلط ہے پھر مناسب ہے بڑی ہے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ ماشاء اللہ. قریب آگے تو اچھا ہے. جن کو اگر ہے کہ پرابلم ہے تو پیچھے بیٹھ سکتے نہیں تو آگے مطلب میں آگے سبحان ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
میرے ساتھ مل کے پڑھے، بابا سے بلند پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد مخدوم و محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام، مہمانان عزیز وقار، حاضرین مجلس، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست درس قرآن کی نشست ہے اور مجھ فقیر حقیر سے کہا گیا کہ آپ نے کچھ عرض کرنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تھوڑا سا کرسی اس طرف کر لیتا تاکہ آپ اور میں بالکل آمنے سامنے ہو۔ جو آیت مقدسہ میں نے قرآن شریف کے بعد تلاوت کی ہے سورہ آل عمران 4 پارہ اور یہ آیت نمبر 164 ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے۔ جو قرآن مجید و فرقان حمید کا اوپر فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اس نے انہیں میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اب جس عظیم رسول کو مبعوث فرمایا ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں اسے آگے قرآن مجید و فرقان حمید خود ہی بیان فرما رہا ہے۔ فرمائے یتلو علیہم آیاتی، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آیتیں بھی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّیہم ہے اور یہ لوگوں کو پاک بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور ان کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ برادران ملت، بظاہر آپ دیکھیں تو مختصر سی آیت مقدسہ ہے، لیکن اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی کئی نعتیں بیان فرمائی۔ اب ذرا سوچیے آپ کہ اس آیت مقدسہ میں حضور علیہ السلام کی کئی نعتیں ہیں، تو پورے قرآن مجید و فرقان حمید میں پیارے مصطفیٰ کی کتنی نعتیں ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کو جب بھی کوئی شخص عشق رسول اور محبت رسول کی نظروں سے پڑھے اسے پورا کا پورا قرآن پیارے مصطفیٰ کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کہ آپ دنیا کے سارے علماء کو جمع کر لیں، سارے مشائخ اعظام کو جمع کر لیں، دنیا کے سارے نعت خواں، سارے لغتداں، سارے مفتیان کرام جمع ہو جائیں، بلکہ میں کہتا ہوں سارے جنات کیا، سارے فرشتے کیا، ساری مخلوق جمع ہو جائیں، وہ سب مل کے بھی پیارے مصطفیٰ کی ویسی نعت بیان نہیں کر سکتی جیسی نعت ان کی رب نے بیان کی۔ اب یہ جو قرآن مجید و فرقان حمید کا نعت بیان کرنے کا انداز ہے نا، یہ بہت مختلف ہے۔ جو آپ نعتیں دیگر سنتے ہیں
जो हालत आज कल नातवानों ने कर दी, उठा के बोले, बिठा के बोले, हाथ खड़ा करे, हाथ बिठाए, वो ऐसा लगता है ये तो योगा कराने आए, ये तो पीटी मास्टर है। नात का मतलब ये है कि आप ना तो प्यारे मुस्तफा की बारगाह में सुनाने आए हैं, तो आरजी होनी चाहिए, इनके सारी होनी चाहिए, ये सारे तमाशे नहीं होने चाहिए। हम हुजूर को ना सुनाने के लिए आए या आवाम को ना सुनाने। अगर आप आवाम को सुना रहे फिर आप करते रहे, दुनिया के लिए अगर आप काम कर रहे हैं। अगर आप प्यारे मुस्तफा को सुनाने आए हैं, अदब होना चाहिए, तहजीब होनी चाहिए, शाइस्तगी होनी चाहिए। ऐसे नात पढ़े कि आप पर भी कैफियत तारी हो जाए और सुनने वाला भी इश्क़ मुस्तफा में हो जाए। तो पहले ऐसे नहीं होता, लेकिन बीच के अंदर फिर ये सारे मामला शुरू हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको भी हिदायत अता फरमाए और हमको भी अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, हुजूर का अदब, नात पानी का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया लक़द मन्ना अल्लाहुल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान फरमाया मुसलमानों पर। अब जरा गौर फरमाए, एक एक जुमला बड़ी अहमियत का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अगर हम उन नेमतों पर गौर करें, सोचें, तो हमारा एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान अदा करते हुए, यानी मौला के तेरा एहसान, तेरा करम, तो हमारी ये जिंदगी के लम्हात बस उसी में गुजरने लग जाए। आज हाल क्या है कि बेशुमार नेमतें अता फरमाई, लेकिन हाल ये है कि नेमतों की नाकदरी है। बजाय शुक्र अदा करने के लोगों की जुबानों पर शिकवे शिकायतें, और लोग इस शिकवे शिकायतों में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सोचते नहीं है कि वो अपनी जुबान से क्या अल्फाज निकाल रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलां को तो इतना खूबसूरत बनाया, मुझसे क्या गलती हो गई थी कि अल्लाह ने मुझे हुस्न नहीं दिया, फलां को तो अल्लाह ताला ने माल ज़र से नवाज दिया और उसको तो सिग्नेचर तक करना नहीं आती, और मैं इतना पढ़ा लिखा, अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, लोगों की जुबानों पर शिकवे शिकायतें। पहले ये समझते थे हम कि शायद ये बीमारी हमारी औरतों में मौजूद है, लेकिन अब ये बीमारी हम मर्दों में भी आ गई, और अब आगे बढ़ते हुए हमारी नस्लों में भी बीमारी मुंतकिल होती जा रही है। याद रखो मुसलमानों, बिलफर्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी को कुछ भी नहीं दिया, बिलफर्ज, ना उसके पास रहने के लिए मकान, ना उसके पास सवारी के लिए साइकिल है, 2-4 लिबास, 2-4 जोड़े उसके पास, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ यही चीज उसके पास है, तब भी अगर वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करे, अपने फहम को इस्तेमाल करे, तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का, खरबों का सामान अता फरमाया हुआ। आप कहें शाह साहब वो कैसे? इसके पास तो घर भी नहीं है, इसके पास तो साइकिल तक नहीं है, इसके पास तो सिर्फ 2-4 जोड़े हैं, और आप कहते हैं कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों खरबों का सामान अता फरमाया। ठीक कहता हूं, अब इसको जरा समझाता हूं ताकि बात आपके दिमाग में बैठ जाए। कहते हैं कि एक फकीर, एक मांगने वाला एक गली से सदाएं लगाता हुआ जा रहा था कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं। जब वो गली के आखिरी मकान पर पहुंचा तो कहते हैं कि ये मकान किसी अल्लाह वाले का मकान था। इसने जाके जब सदाएं बुलंद की कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो बुजुर्ग बाहर आ, और बाहर आम के फकीर से कहने लगे कि ये तुम क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं? उसने कहा वाकई हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं। फरमाने लगे अगर तू गौर करना,
तेरे पास हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का सामान मौजूद। उसने कहा ठीक है हजरत, आप जरा मुझे समझा तो दे कि मेरे पास किस तरह से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का सामान मौजूद है। अगर आप समझा देंगे तो वादा करता हूं कि मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूंगा। अब ये बात ज़हन में रखो दोस्तों कि बड़े की बात हमेशा बड़ी होती है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का जो कलाम होता है ना वो भी कलामों का इमाम है। अब वो बुजुर्ग कैसे हसीन अंदाज में समझाते हैं, मैं घंटों गुफ्तगू करूं आपको नहीं समझा सकता। वो फरमाने लगे फकीर से ऐसा कर, 5-10 हज़ार रुपया हमसे ले लो, ये अपना पांव काट के हमें दे। फकीर कहने लगा हजरत ये 5-10 हज़ार की बात करते हैं, आप 5-10 लाख भी दे दे, मैं आपको ये पांव काट के नहीं दे सकता। और मैं अच्छा ऐसा करूं 40-50 हज़ार रुपया दे दो हमसे, ये हाथ काट के हमें दे दो। फकीर कहने लगा आप 40-50 हज़ार, आप 2-5 करोड़ की दे, मैं आपको हाथ काट के नहीं दे सकता। और मैं अच्छा 1-2 लाख रुपया दे दूंगा यार, अपनी ये आंख निकाल के हमें दे। वो कहने लगा 1-2 लाख 70-80 करोड़ क्या अरब की दे दे, मैं आपको आंख निकाल के नहीं दे सकता। अब वो अल्लाह के वली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे नादान गौर कर, ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का सामान तो अल्लाह ने सिर्फ तेरे ऊपर के जिस्म पे लगाया। अंदर अल्लाह ने कितने खरबों का माल रखा, काश कि तू अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता। तो दोस्तों ये बात ज़हन में रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको जैसा बनाया, जिसको जिस हाल में रखा, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। वापस आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। बाज़ उलमा फरमाते बगैर सुतूनों के कायम नीला आसमान दिया, जमीन का बिछोना दिया, चांद सूरज सितारे दिए, रवा दवा नदियां दी, ठाटे मारते हुए समंदर दिए, माँ बाप दिए, बीवी बच्चे दिए, लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। उन नेमतों का जिक्र किया तो सही कुरान, जैसे सूरह रहमान को हम पढ़ते हैं, नेमतों का जिक्र करते हुए बार बार फरमाए फबियज्जी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, फबियज्जी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे। बाज़ उलमा फरमाते हैं नेमतों का जिक्र तो किया लेकिन एहसान नहीं जताया। फरमाते हाँ, जब अपने प्यारे हबीब को इस दुनिया में भेजा ना, अब वो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ऐ मुसलमानों ये मेरा एहसान है कि मैंने अपना लाडला और प्यारा महबूब तुम्हें अता किया। उलमा फरमाते हैं कि पता ये चला कि इस कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हम सारे मुसलमान ये कहते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सारे उलमा यही कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर कोई सवाल कर दे आपसे कि साहब आप लोग ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तो जरा ये तो फरमा दें कि किस वजह से हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। जरा 1-2 वजह तो हमारे सामने बयान करें ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि वाकई हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर कोई ये सवाल आपसे कर दे तो ये जवाब आप ज़हन में रखें। मैं सिर्फ 2 वजह आपके सामने रखता हूं। देखिए, दुनिया की सारी नेमतें उस वक्त तक हमारे लिए फायदेमंद है जब तक कि हम जिंदा हैं। ठीक है, ये चांद सूरज सितारे दरिया समंदर पानी ये उस वक्त तक फायदा देते रहेंगे जब तक कि हम जिंदा हैं। रूह जिस्म से निकली, मौत आ गई, आप जितने बैठे हैं मुझे बताना, क्या कब्र में चांद साथ देगा? बोलिए जरा। सूरज साथ देगा? सितारे साथ देंगे? माँ बाप साथ देंगे? दोस्त व अहबाब साथ देंगे? कोई साथ नहीं देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इसकी पहली वजह यह है कि इस दुनिया में नज़ा के वक्त, कब्र के अंधेरों में,
मैदान महशर में, मीज़ान अदल पर, पुल सिरात पर, हौज़े कौसर पर, यहाँ से लेके वहां तक अगर कोई जात काम आने वाली है तो वो प्यारे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अगर कोई जात काम आने वाली है तो वो प्यारे मुस्तफा की जात। और अब भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पे इरशाद फरमाया, गोया फरमाया, मेरे गुलामों, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, नेमत है, और मेरा विसाल भी तुम्हारे लिए नेमत है। गुलामों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी तो है ही नेमत, लेकिन विसाल कैसे नेमत होगा? फरमाया, सुनो, जब हम विसाल के बाद अपनी कब्र अनवर में जाएंगे, हर जुमेरात और पीर के रोज तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाए। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे होंगे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, और अगर तुम्हारे आमाल खराब होंगे मैं तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। अल्लाहु अकबर। तो ये बात ज़हन में रखे कि हुजूर अलैहिस्सलाम यहां से वहां तक अगर कोई जात काम आने वाली है तो वो प्यारे मुस्तफा की जात है। दूसरी वजह कि हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। देखे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन का काम शुरू किया, अरबों ने हुजूर को लालच दिया, छोड़ दो, सोना चांदी चाहिए, हम आपको तोल देंगे, सरदार बनना चाहते हैं, बना लेंगे, किसी खूबसूरत खातून से शादी करना चाहते हैं, करा देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी ऑप्शन, किसी तजवीज को कबूल नहीं फरमाया, बड़ी सादगी के साथ जिंदगी गुजारी हुजूर अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिए कि ऐसा नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास माल नहीं आया, दौलत नहीं आई, ऐसा नहीं। आप जरा ग़ज़वा हुनैन को पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास इतना माल आया, इतना माल आया कि हुजूर ने एक एक गुलाम को 100 ऊंट अता फरमाया। माल आया, लेकिन हुजूर की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। जिस तरह पहले सादा सी जिंदगी थी, अब भी हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। उसकी दूसरी वजह यह है कि दुनिया ने हुजूर को नहीं बदला, अकेले प्यारे मुस्तफा ने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया। आप मुझे बताए तो सही, कितने अरसे काम किया मेरे आका ने? जाहिरी उम्र शरीफा 63 बरस, और 40 साल तो हुजूर खामोश रहे। सिर्फ 23 साल हुजूर ने दीन का काम किया। इस 23 साल में हुजूर ने वो काम कर दिया। कनाडा, कैलगरी, अमेरिका, ह्यूस्टन, वर्जीनिया, ये लॉस एंजलिस, अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां प्यारे मुस्तफा का चाहने वाला, मानने वाला ना। तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया मुसलमानों पर। अब मुफस्सिरीन ने इस सवाल को उठाया कि अल्लाह का एहसान तो सारी कायनात पर है ना, सारी इंसानियत पर है, तो फिर कुरान ने यहां पर क्यों कहा कि अल्लाह ने एहसान फरमाया मुसलमानों पर? क्यों कहा? यहां पर यह क्यों नहीं फरमाया कि अल्लाह ने एहसान फरमाया सारे इंसानों पर? फरमाया अल्लाह ने एहसान फरमाया मुसलमानों पर, तो मुसलमानों को खास क्यों किया गया? मुफस्सिरीन सवाल उठा के जवाब देते हैं, फरमाते बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो मुसलमानों ने उठाया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तक जाहिरी तौर पे जमीन पे मौजूद रहे, मुसलमानों ने हुजूर से फायदे उठाए। विसाल के बाद हुजूर कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, मुसलमानों ने फायदे उठाए। वो वक्त है, आज का वक्त है, मुसलमान हुजूर से फायदे उठा रहे हैं, और कयामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान हुजूर से फायदे उठाते रहेंगे। अब जरा मैं आपको कुछ झलकियां तो बताऊं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से कैसे लोगों ने फायदे उठाए, ताकि आपका ईमान झूम उठे। हुजूर शाहतुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला इस वाक़े को बयान करते हैं। मफ़हूम इस तरह है, फरमाते हैं कि एक साहबी रसूल बेटी की रुखसती करना चाहते हैं, अतर नहीं मिल रहा, खुशबू नहीं मिल रही, बड़े परेशान हुए।
اور پریشانی کے عالم میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو. آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان, عطر نہیں مل رہا, خوشبو نہیں مل رہی. حضور علیہ السلام مسکرائے, فرمائے جاؤ ایک شیشی لے آ, ایک بوتل لے آ. بڑے پریشان تھے, آئے تو پریشانی کے عالم, لیکن جب فرمایا نا جاؤ بوتل لے کے آؤ, خوشی سے نکلی. تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھ ہو سکتا. میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. ابھی کچھ دن ہیں کہ آتا بندہ روتے ہوئے تھا حضور کی بارگاہ میں, لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ سے جاتا تو وہ ہنستے ہوئے تھا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جاؤ ایک بوتل لے آؤ. گئے صاحب لے آئے شیشی, بوتل لے آئے. اچھا حضور نے ایسا نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں عطر موجود ہو تو اس میں سے عطر ایک بوتل میں سے دوسری بوتل میں منتقل کیا ہو. حضور نے کیا کیا؟ حضور شاہ طلب محدث دیوی رحمہ فرماتے حضور نے اپنے پسینہ مبارکہ کے نقاط نکالا, شیشے میں ڈالا, اس بوتل میں ڈالی, فرمایا اسے لے جا. گویا جب تمہاری بیٹی عروسی لباس شادی والا جوڑا زیب تن کرے پہنے, اس سے کہنا بس ایک دو قطرے نکالے اور اپنے شادی والے لباس پر اس جوڑے پر لگا دے. حضور شاہ طلب محدث دیوی رحمہ فرماتے حضور نے وہ شیشی عطا فرمائی. اللہ اکبر. اب یہ عرض نہیں کر رہے, آپ ایمان دیکھیے کتنا قوی ہے. یہ عرض نہیں کر رہے کہ میرے آقا میں تو عطر لینے آیا تھا اور آپ نے پسینہ مبارکہ کے قطرات دے دی. نہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عطر سے تو صرف لباس مہکتے, پسینہ مصطفیٰ کا وہ اثر ہے جس سے خاندان مہکتے, نسلیں مہکتی ہیں, گلیاں مہکتی ہیں, محلے مہکتے ہیں. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. صحابہ کرام حضور کو تلاش کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی, وہ سونگ لیا کرتے تھے, خوشبو بتا دیتی تھی پیارے آقا اس گلی سے. اللہ اکبر. اب وہ شیشی لے کے گئے, بوتل لے کے گئے, بیٹی کی رخصتی کا وقت آئے, انہوں نے عروسی لباس زیب تن کیا اور زیب تن کرنے کے بعد بس دو چار قطرات نکالے یا ایک دو قطرات نکالے اپنے عروسی لباس پر. جب لگائے حضور شاہ طلب محدث دیوی رحمہ فرماتے بس لگانا تھا کہ پورا مدینہ شریف حضور کے پسینے کی خوشبو سے مہکنے لگا. لوگوں نے ان کے گھر کا نام خوشبوؤں کا مرکز رکھ دیا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, فرماتے ان کی شادی ہوئی, ان کے یہاں جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی سب کے جسموں سے پیارے مصطفیٰ کے پسینے کی فرماتے یہ سلسلہ نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا. کیسے فائدے اٹھا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جنگ لڑ رہا تھا, دوران جنگ کسی کا تیر آ کر میری سیدھی آنکھ پہ لگا, آنکھ نکلی لٹک گئی. سیدھا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ دیکھیے جنگ لڑ رہا تھا, کسی کا تیر آ کر کے لگا, آنکھ نکلی لٹک گئی. فرماتے حضور نے لٹکی ہوئی آنکھ کو اٹھایا, اسی سوراخ میں رکھ دیا جہاں سے نکلی تھی, اپنا لعاب دہن نکالا اور میری آنکھ پہ مل دیا. فرمایا قتادہ اپنی آنکھیں تو کھولو. فرماتے جب آنکھیں کھولی واللہ میری سیدھی آنکھ الٹی آنکھ سے زیادہ روشن ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیسے فائدے اٹھائے. اور حضور علیہ السلام جب قبر انور میں تشریف لے گئے نا, یہ سلسلہ رکا نہیں رکا. اب کوئی کہتے ہیں لوگ, آپ جانتے ہیں کہ اب تو مختلف لینگویج ہے, مختلف زبان ہے, صاحب کوئی فائدہ نہیں حضور کے مزار شریف پہ جانے کا, کوئی فائدہ نہیں ملتا. بھائی ہمیں تو ملتا ہے, تمہیں نہیں ملتا تو یہ الگ بات ہے, ہمیں تو ملتا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. آج بھی در رسول سے سب کچھ ملتا ہے. یہ ساری نعمتیں, یہ ساری چیزیں آج بھی پیارے مصطفیٰ تقسیم فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کر, لوگوں کو دلوں کے اندر حضور کی معاذ اللہ نفرت پیدا کر, کیوں لوگوں کو پیارے مصطفیٰ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ مسلمان ویسے ہی پریشان, مسلمان سکون چاہتے,
मुसलमान राहत चाहती है। ये कौम, इस कौम को अगर राहत मिलेगी तो प्यारे मुस्तफा की बारगाह से मिलेगी। और आप प्यारे मुस्तफा का अगर बागी बना देंगे, याद रखो कि दुनिया में भी तबाह हो जाओगे और आखिरत में भी तबाह हो जाओगे। अल्लाह ऊपर विसाल हो गया, हुजूर कब्र अकबर में तशरीफ ले गए। हुजूर शाह अब्दुल हक मौकिस देलवी, ये तारीख मदीना इसका नाम है। एक दूसरा नाम है जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब। उसमें लिखते हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सदी शरीफ के रावी फरमाते हुजूर के विसाल हुए सिर्फ 3 दिन गुजरे थे, मैंने देखा एक देहाती, एक आराबी हुजूर की कब्र अनवर पर आए और आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत फरमाई, मेरी मगफिरत फरमाई। हजरत अली फरमाते हैं वो कब्र रसूल से मट्टी उठाता, अपने सर पे डालता, ज़ारो कतार होता। फरमाते जब जाने लगा मैंने अपने कानों से सुना हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, जा तेरी मगफिरत, सुभान अल्लाह, जा तेरी नजात कर दी गई। अल्लाह को अकबर। मुसलमानों ने फायदे उठाए। इसी जज्बुल कुलूब में हुजूर शाह अब्दुल हक मौकिस देलवी लिखते हैं, एक बुजुर्ग थे कि जिनका नाम था इब्ने जिला, मदीने शरीफ पहुंचे, 3 दिन फाकों से गुजर गए, खाना ही नहीं मिलता, बड़े परेशान। चौथे रोज सुबह ही सुबह प्यारे मुस्तफा की बारगाह में आ गए, हाथ बांध के मजार शरीफ के सामने अर्ज करते हैं, मेरे आका आपका मेहमान 3 दिन हो गए, कोई खाना ही नहीं मिलता। बस ये मामला पेश किया और मजार शरीफा से थोड़ा फासले पर बैठ गए, नींद लग गई। मेरी जुबान में कहो ना, इधर असर की आंखें बंद हुई, इधर दिल की आंखें खुल गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। अब देखें, अब ये नहीं फरमा रहे हुजूर, हाँ मेरे गुलाम क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है? फरमाते हैं इब्ने जिला, तुम्हें भूख लगी है? पता चला कि प्यारे मुस्तफा हमें हमारे नामों से जानते, हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप के नामों से जानते। फरमाए इब्ने जिला भूख लगी है? जी हुजूर भूख लगी है। फरमाया रोटी खाओगे? जी हुजूर रोटी खाओगा। फरमाते हुजूर ने ख्वाब में अपने गोरे गोरे हाथों से मुझे रोटी अता की। मैंने आधी रोटी हुजूर को देखते हुए खाई। फरमाते आधी रोटी खत्म हुई ना, मेरी आंखें खुल गई। मैं हैरान हो गया कि नींद से उठने के बावजूद बकिया आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद। सुभान अल्लाह, क्या शान है प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की। हुजूर पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह, एक बड़े मशहूर बुजुर्ग, मदीने शरीफ पहुंचे, रोज़ा रसूल पे हाजिरी देने के लिए गए। देखा एक शख्स है जो हेड टोपी नहीं पहना हुआ, नंगे सर है और मजार शरीफ के सामने खड़ा हुआ और दुआ कर रहा है। पीर जमात अली शाह साहब को बात अच्छी नहीं लगी कि हुजूर का रोज़ा और नंगे सर, टोपी तो पहन के आनी चाहिए थी ना। तो इसलिए याद रखे, ये जो मीलाद की महफिल, दर्से कुरान की महफिल, मस्जिद के मामलात, टोपी सर पे जरूर होनी चाहिए, सुथरा लिबास, बावजू, क्योंकि इसमें रहमतें बरसती हैं। तो अगर एक नजर रहमत हुजूर की हो गई तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। पीर जमात अली शाह साहब ने देखा नंगे सर, तो बड़ी आहिस्तगी के साथ उसकी पीठ पे हाथ लगाया, इधर का। उसने घूम के देखा, उसे इशारा किया, उसे दूर लेकर मदीने शरीफ से, क्योंकि हुजूर के रोजे के सामने आवाज बुलंद करना कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने सख्ती के साथ रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमानदार, ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबिय्यि वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबाअ अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालों, खबरदार, मेरे महबूब की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद न कर। अगर तुमने अपनी आवाज को बुलंद किया, तुम्हारे सारे अमाल तबाह कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ना उनके हुजूर ऐसे चिल्ला के बात करना जिस तरह के तुम एक दूसरे से करते हो, मना फरमाया। और आज मैं हाल देखता हूं तो रोना आता है। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोबाइल जेब में, रिंगटोन बजती है तो उसमें सॉन्ग, उसमें गाने, रोज़े रसूल के सामने गाने बज रहे।
रोज़े रसूल के सामने लोग सेल्फियां लेने में लगे हुए, कैमरे की लाइट, फ्लैश की लाइट जानी मुबारका पर पड़ रही है, और हम सारे काम करके आके ये समझते हैं कि हम अल्लाह रसूल को राजी करके आते, हम तो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके आते। वो बारगाह तो बड़ी अदब की बारगाह है, और उस बारगाह में मैं आपको बताऊं उस बारगाह का हाल क्या है। ये लाजिम है हमारे उलमा जितने बैठे हैं उन पर कि ये कनाडा में मुसलमानों की इस्लाह करें, आप बयान करने में शर्म महसूस नहीं करें। ये बात ज़हन में रखें कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की, तो दुनिया वाले क्या दे देंगे आपको रोजी, हम बयान। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, एक मुरीद आपका कहने लगा हजरत मैं हज करने जा रहा हूँ, और मैं ठीक है जाऊँ हुजूर, मैं रोज़ा रसूल पे भी जाऊँ, फरमाए हाँ, कुछ नसीहत कर। फरमाने लगे मदीने शरीफ के किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं देनी। ठीक है हुजूर, मैं तकलीफ नहीं दूंगा। शिप में पानी के जहाज से सफर होता था, वो गए, वहां काफी अरसे रहा, 5-6 महीने के बाद आए, सोचने लगा पहले घर जाऊं या पीर साहब की बारगाह में जाऊं। चलो पीर साहब की बारगाह में जाते, हुजूर अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आते, सलाम किया, सामने बैठकर अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना चेहरा इस तरफ देखा, ये इस तरफ आ गया, आपने चेहरा इस तरफ फिर कहा हजरत मैं आपका मुरीद, मैं हज करने गया, मैं मदीने शरीफ गया, आपने पहचाना नहीं? फरमाया पहचान, मैंने तुझे ये नसीहत नहीं की कि मदीने शरीफ के किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं देनी। अबू अली शाह कलंदर का एक नाम, एक मर्तबा, एक मुकाम, वो कहने लगा हुजूर मैंने तो किसी जानवर को तकलीफ नहीं। फरमाया क्या तुमने पांव की ठोकर नहीं मारी थी एक कुत्ते को, जिसकी वजह से उसका पांव जख्मी हो गया? कहा हजरत हाँ मुझे गलती से लग गई। अबू अली शाह कलंदर ने अपनी आस्तीन ऊपर की, यहाँ पट्टी बनी, आने लगे वो मैं था। अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं वो मैं था। आप क्या समझते, मेरे आका की बारगाह, लोगों ने तो उसे पेरिस और डाउनटाउन की तरीके से माज़अल्लाह इस तरह पिकनिक पॉइंट समझ ली। वो रोज़ा रसूल है, उसका अदब करना हम पे जरूरी है, लाजिम है। अगर हमने जरा भी बेअदबी की कयामत में कुछ भी नहीं होगा। हम तो सोच रहे हैं ना इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतना दीन का काम कर दिया, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह साहब वापस आए, पीर जमात अली शाह साहब उससे दूर ले गए, मदीने शरीफ से दूर हो गए, रोजा रसूल से दूर। उस पर गुस्सा हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे आका के रोजे के सामने उन नंगे सर हो, चलो मेरे साथ। ले गए उसे जहां पर ठहरे हुए थे, कपड़े की गठरी थी, उसे खोली, गरीब आदमी थी, उसे खोली। तो कश्मीर की टोपी आज भी मशहूर है, खास श्रीनगर में मिलती है। कश्मीर से एक टोपी ले गए थे, ये मुजफ्फराबाद उत्तर भी मिलती है, खास टोपी। वो टोपी निकाल के उसके सर पे रखी, उसने टोपी उठा के देखा, कहकर मार के हंसने लगे। पीर साहब ने कहा तू हंसता क्यों है? कहने लगा पीर साहब यकीन करो या ना करो, रोज़े रसूल के सामने खड़े होके यही कह रहा था या रसूलल्लाह टोपी पहनूंगा तो कश्मीर की गरीबी पहनूंगा, रोज़ा नहीं पहनूंगा। ये टोपी मुझे आपने नहीं दी है, ये टोपी तो मुझे मदीने वाले मुसलमान, अल्लाह पर मुसलमानों ने फायदे उठाए हुजूर से, और कयामत तक मुसलमान हुजूर से फायदे उठाते रहेंगे। हमें तो जो कुछ भी मिला है ये तरे रसूल से मिला है, हुजूर के नाम के सत्ते से मिला है। और दुनिया का उसूल ये है कि जिसका खाना उसी का गाना। हम तो आका का खाते हैं, यही वजह है आका के गुण गाते हैं, और हमारी जिंदगी इसी में गुजर जाए। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं, उनका अजब खाने वो राने वाले। तो अभी तफसीर और बहुत बाकी है, और उस पर काफी वक्त चाहिए। वो कराची होता, पाकिस्तान होता, तो लोग बैठते हैं बड़े इत्मीनान के साथ, तो 2-2 घंटे तक लोग इत्मीनान के साथ गुफ्तगू को सुन लेते।
لیکن یہاں پر معاملات کچھ ایسے ہیں اور بھی لوگوں کو کام پر بھی جانا ہوتا ہے، سیٹرڈے میں بھی لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر، تو اس محدود سے وقت میں بس اتنی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ایک بہت بڑا جلسہ اس کا اعلان ہوگا. آپ سارے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، سب آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں. انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ ہوگا، جو مجھے وقت ملے گا میں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے کرم سے حضور کی عطا سے ایک اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب میں پیار و محبت پیدا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو قریب آئے، ہم سارے لوگ ایسا کرم ہم پہ فرمائے، اور حضور کی تعظیم اور حضور کا ادب ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ایسا کرم ہم پہ فرمائے، بے ادب لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی محفوظ بیان تھا حضرت صاحب کا. اب بلا تاخیر آپ لوگ اس کی گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے تاکہ اس کا سلام پڑھی جائے، اس کے بعد دعا انشاءاللہ. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہنی گھڑی چمکا طیبہ کا شام، اس دل افروز ساعد پہ لاکھوں سلام، محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جسے خدمت کے قدسی کہے ہر ازاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.